الصادقين بالتوحيد والإيقان وأعلى درجة الذين هم أبلغ القرآن في الأقران والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اے جنت تجھ میں غور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام بھائی دوست بزرگ اور مائیں اور بہنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک کما وسلم بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں اور پردہ میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج ہم سب شادی کی تقریب میں جمع ہیں۔ عام طور پر ایسی تقریبات میں دین کی بات سننے سنانے کا رواج نہیں ہے، اس لیے ایسے مواقع پر اگر بیان کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے تو بعض لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ شادی کے موقع پر بیانات کا کیا کام، اس لیے کہ ہم نے شادیوں کے طرز عمل اور طور طریقے ہندوؤں کے مطابق بنا کر، یہودیوں کے مطابق بنا کر، انگریزوں کے مطابق بنا کر ان چیزوں کو رواج دیا، وہ ہمیں عجیب نہیں لگتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات اس موقع پر کی جائے تو ہمیں عجیب لگتا ہے۔ جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ ایک بستی تھی جہاں سارے لوگ ایسے رہتے تھے جن کے ناک کٹے ہوئے تھے۔ وہ بستی مشہور تھی کہ یہ نک کٹوں کی بستی ہے، یہاں سارے لوگ رہتے ہیں جن کے ناک کٹے ہوئے ہیں۔ تو پوری بستی ایسی تھی، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کوئی عجیب نہیں لگتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پورے ناک والا آدمی جس کا پورا سالم ناک تھا وہ اس بستی میں چلا گیا۔ جیسی اس بستی میں اس نے قدم رکھا تو سب اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی ناک والا، پوری ناک والا بندہ ہماری بستی میں آ گیا۔ اب ان کو اپنی جو ناک کٹی ہوئی تھی وہ عجیب نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پوری بستی کا ایک جیسی ناک کا انداز تھا، لیکن پورے ناک والا ان میں آ گیا تو اب وہ ان کو عجیب لگ رہا تھا کہ یہ عجیب ناک والا ہماری بستی میں کیسے آ گیا، یہ کس جگہ کی مخلوق ہے، کہاں سے آئی ہے۔ تو آج ہمارا بھی یہی رواج بن چکا ہے کہ شادیوں کے موقع پر ڈھول بینڈ باجے، آج ہماری شادیوں کے اندر انہوں نے مرکزی خیال جو ہے شروع کر دیا، اور اس موقع پر اگر پورے ناک والا پورے دین کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اس موقع پر مفتیوں کا، علماء کا، ان کا کیا کام، اس موقع پر تو نعوذ باللہ گلوکار بلانے چاہیے، اس موقع پر تو نعوذ باللہ جو ہے وہ دنیا والے لوگ بلانے چاہیے، کیونکہ ہم نے غلط چیز کو رواج دیا۔ جس طرح نک کٹے لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے اور پوری ناک والے کو عجیب سمجھ رہے تھے، اسی طرح آج ہم نے شادیوں کا طرز عمل ڈرامے دیکھ دیکھ کر، فلمیں دیکھ دیکھ کر ایسا بنا لیا کہ ہمیں اگر سنت کے مطابق
شادی کے اندر اگر کوئی کام نظر آ جائے تو ہمیں وہ عجیب لگتا ہے، اور غیروں کا طریقہ وہ ہمیں شادی کے عین مطابق لگتا ہے۔ حالانکہ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طرح نکاح اور شادی بھی عبادت ہے۔ عبادت کو اگر عبادت کے طریقے پر کیا جائے گا تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور اگر عبادت کے طریقے کو ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اپنی منچاہی پر کریں گے، تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ نماز اپنی مرضی سے کوئی پڑھے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر نماز قبول نہیں ہے۔ روزہ اپنی مرضی سے رکھے، نبی کی سنت چھوڑ کر روزہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حج عبادت ہے، اپنی مرضی سے کوئی کرے، حج قبول نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، جب نکاح بھی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، دین کا ایک شعبہ ہے، اگر ہم اس کو نبی کی سنت چھوڑ کر کریں گے تو کیا وہ نکاح وہ برکتیں لے کر آئے گا، وہ فوائد لے کر آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا اور ہمیں خوشخبریاں سنائی ہیں؟ یاد رکھیے، اسی نکاح میں برکت ہوگی جو نکاح نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، اسی سے نسلوں میں دین چلے گا، وہی نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ پائیدار ہوگا، زیادہ برکتوں کو لے کر آنے والا ہوگا، جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیے، آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، آپ نے صحابیات کے نکاح کیے، پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکاح کیے۔ اور آج ہمارے نکاحوں کے اندر دیکھا جائے تو بالکل زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے کہ ان کے نکاح کیسے تھے اور آج ہمارے نکاح کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نکاح میں پیش کرنے لگا ہوں، جس بیٹی کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، جو بیٹی میرے نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیٹی جو اتنی لاڈلی، اتنی چہیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آتی کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جاتے یا واپس آتے تو اپنی بیٹی کے گھر میں ضرور جاتے۔ اتنا جس بیٹی سے پیار ہے، جو بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے، ہم کیا اور ہماری کیا شان، وہ بیٹی جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، اس کی شادی ہونے لگی ہے، فاطمہ کی شادی ہونے لگی ہے، فاطمہ کا نکاح ہونے لگا ہے۔ آج ہم فاطمہ کی بیٹے اور فاطمہ کی بیٹیاں بننے میں فخر کرتے ہیں، تو اپنی ماں کا نکاح تو دیکھو، ہماری ماں کا نکاح کیسے ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا، تو بڑی عمر تھی، آپ نے معذرت کر لی، پھر حضرت عمر نے بھیجا، بڑی عمر تھی، معذرت کر لی، اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر تقریباً 15.5 سال تھی، پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رشتہ منظور ہوا، اور اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اپنی بیٹی علی کے نکاح میں دے دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ منظور کر لیا، ادھر رشتہ منظور ہوا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہیں حضرت انس کو کہا، انس جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، عبد الرحمن کو بلاؤ، یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے مسجد میں، تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، تم گواہ بن جاؤ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ 400 درہم میں طے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ علی نے اس کو قبول کر لیا، ایجاب و قبول ہو گیا، بس یہ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح کے بعد کچھ ستو اور کچھ کھجوریں وہ ان شرکاء میں تقسیم کی گئی، چھوارے تقسیم کیے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ام ایمن کو کہا، جو آپ کی دایا تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ام ایمن، ان کو کہا میری بیٹی فاطمہ کو ان کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، یہ بارات جا رہی ہے۔ ام ایمن گئی، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، یہ اب کائنات کے سردار کی بیٹی اور وہ بھی جنت کی خواتین کی سردار، اس کی بارات جا رہی ہے، اور ام ایمن اکیلے ان کو ساتھ لے کر علی کے گھر چھوڑ کر آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بعد میں جاتے ہیں ان کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر، اور بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی پانی لے کر آؤ، بیٹی پانی لے کر آتی ہے، آپ اس میں سے کچھ پانی پیتے ہیں، پینے کے بعد آپ اس پانی پر کچھ دم کرتے ہیں، آخری 2 صورتیں دم کرنے کے بعد بیٹی کے چہرے پر پانی چھڑکتے ہیں اور 2 کندھوں کے درمیان، پھر کہتے ہیں بیٹی پیچھے کی طرف سے ہو جاؤ،
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कंधों के दरमियान भी पानी छिड़कते हैं और आप कहते हैं, अल्लाह मैंने फातिमा की औलाद को शैतान से तेरी पनाह में दे दिया, तू खुद इनकी हिफाजत कर। फिर अली को बुलाया, अली को कहा पानी लेकर आओ। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु पानी लेकर आए, आपने उस पर भी दम किया, अली के ऊपर छिड़का, कंधों पर छिड़का और आपने कहा, ए अल्लाह मैं अली को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूं। ये कायनात के सरदार की बेटी का निकाह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, वो निकाह बरकत के एतबार से बहुत आगे है जिस निकाह में मुशक्कत कम होती है, खर्च कम होता है, अल्लाह उसकी बरकत को ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसको ज्यादा पायदार और मजबूती अता करते हैं। इसलिए निकाहों की जो तकरीबात हैं उनको जितना सादा रख सकते हैं उतना सादा रखा जाए तो उसमें ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकत और रहमत शामिल हाल हो जाती है। निकाह इस्लाम का एक अहम हुक्म है, मेरे नबी की सिर्फ सुन्नत नहीं तमाम अंबिया की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबअुम मिन सुननिल मुरसलीन, चार चीजें तमाम अंबिया की सुन्नत हैं। एक फरमाया तमाम अंबिया मिसवाक इस्तेमाल फरमाया करते थे। दूसरी चीज तमाम अंबिया खुशबू का इस्तेमाल किया करते थे। तीसरी चीज तमाम अंबिया हया की जिंदगी गुजारने वाले थे। हर नबी हया की जिंदगी गुजारने वाला था। हया अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के नबियों को पसंद है, मेरे नबी की भी पसंद है। और चौथी चीज फरमाया तमाम अंबिया ने निकाह की जिंदगी गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को निकाह के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। इसीलिए जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तख्लीक किया अपनी कुदरत वाले हाथों से, जन्नत में ठहरा दिया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में ठहरे हुए हैं, लेकिन जन्नत में अकेले हैं, कोई साथ दोस्त नहीं, कोई मानूस करने वाला नहीं। तो जन्नत की जिंदगी भी आदम अलैहिस्सलाम की अधूरी हो गई। किसके बगैर? औरत के बगैर। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा कर दिया। अम्मा हवा को पैदा करके दोनों का जन्नत में निकाह कर दिया। गोया इससे मालूम हुआ कि औरत के बगैर जन्नत की जिंदगी भी अधूरी है। अल्लाह ने उसको मुकम्मल करने के लिए आदम की बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा फरमा दिया। और यहाँ उलमा ने एक नुक्ता भी लिखा है कि अल्लाह ताला ने बाईं पसली से औरत को पैदा किया, पांव से पैदा नहीं किया, सर से पैदा नहीं किया। क्यों? अगर पांव से पैदा करते तो लोग कहते, जिस तरह आज भी कई जाहिल लोग ये बात कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह औरत तो पांव की जूती है, या अगर कहते नहीं है तो उसके साथ घर में ऐसा ही सलूक किया जाता है जैसा कि पांव की जूती के साथ किया जाता है। ये जहालत के जरासीम है। मेरे नबी ने इस जहालत को खत्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीवी को, इस औरत को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया। तो अल्लाह ने पांव से पैदा नहीं किया। लोग कहते हैं ये तो पांव की जूती है, इसको तो पांव में रखना चाहिए। अल्लाह ने पांव से नहीं पैदा किया। अल्लाह ने सर से भी नहीं पैदा किया कि सर से पैदा करते तो लोग कहते, औरतें खुद कहती कि हम सर से पैदा हुई, हमें तो सर पर बिठाया जाए। तो इसलिए भी नहीं कि इनको सर पर बिठाया जाए। अल्लाह ताला ने कहां से पैदा किया? बाईं पसली से। गोया बाईं पसली दिल के करीब है। गोया अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि जितना मियां बीवी का ताल्लुक दिल के साथ और मोहब्बत के साथ करीब होगा, उतना अल्लाह पाक इनकी जिंदगी को जन्नत का नमूना बना देंगे। तो इसलिए निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से शुरू किया। ये निकाह की तकरीब और शादी की तकरीब सिर्फ दुनिया में मुनक़िद नहीं हो रही, ये सबसे पहले तकरीब अगर मुनक़िद हुई तो जन्नत में मुनक़िद हुई थी, जब आदम और हवा का अल्लाह ने जन्नत में निकाह करवाया। और फिर उसके बाद तमाम अंबिया ने निकाह किए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 11 निकाह, और फिर क़यामत तक ये निकाह चलेगा। बल्कि क़यामत के बाद जन्नत में सारे जन्नती चले जाएंगे, कोई वहां हुक्म नहीं होगा, न नमाज का, न रोजे का, न हज का, न ज़कात का, लेकिन निकाह जन्नत में भी बाकी रहेगा। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, हम जन्नत में इनका जोड़ा बनाएंगे और इनकी जन्नत में निकाह करवाएंगे जन्नती हूरों के साथ और जन्नती खवातीन के साथ, जो निकाह
जन्नत से शुरू हुआ और जन्नत तक बाकी रहेगा। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियों में से इसको बयान किया है। कुरान कह रहा है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो अल्लाह जिसने हर चीज का जोड़ा जोड़ा बनाया। ये भी अल्लाह ने अपनी कुदरत में इसको बयान किया। दूसरी जगह भी अल्लाह फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। उस अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है कि उस अल्लाह ने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारा जोड़ा बनाया और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे और उसके दिल में मोहब्बत को डाल दिया, मवद्दत को डाल दिया। ऐसी मोहब्बत और मवद्दत कि मेरे नबी ने फरमाया कि दो अजनबी लोग जिनका एक दूसरे को देखना हराम था, एक दूसरे से इस तरह की मोहब्बत करना उनके लिए नाजायज था, निकाह के बाद इनके दरमियान ऐसी मोहब्बत पड़ जाती है कि कोई ऐसे अजनबी ताल्लुक आपस में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते जो निकाह की वजह से दो अजनबी लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है। और ये मोहब्बत कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है। ये मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है और इस मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह फरमाते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ इतने कुर्बत का ताल्लुक रखते हैं जिस तरह के जिस्म के साथ लिबास इंतहाई करीब होता है, इसी तरह ये एक दूसरे के साथ इतने कुर्बत का ताल्लुक रखते हैं। इससे बेहतर मिसाल कायनात में हो नहीं सकती थी मियाँ बीवी के ताल्लुक की जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई है। और लिबास कहकर अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि मियाँ बीवी का ताल्लुक लिबास वाला होना चाहिए। कि लिबास क्या करता है? लिबास ऐब को छुपाता है। जिस्म पर कोई ऐब हो, ऊपर लिबास उस ऐब को छुपा देता है। तो मियाँ बीवी का आपस का ताल्लुक ऐसा हो कि उनके अंदर की खामियां, ऐब, कमियां वो घर में रहनी चाहिए। एक की बात दूसरा ना बताए, दूसरा पहले की बात अपने घर वालों को ना बताए। इनकी आपस की बात आपस में रहे। जब इनकी आपस की बात बाहर निकलेगी फिर ये घर जहन्नम का नमूना बन जाएगा। इसलिए फरमाया इनका ताल्लुक लिबास वाला है। इनके ऐब, कमियां, कमजोरियां वो लिबास के अंदर छुप जानी चाहिए। और लिबास का दूसरा काम क्या होता है? लिबास से वो जीनत बख्शता है। लिबास के जरिए से इंसान खूबसूरती और सजावट हासिल करता है। तो अल्लाह पाक को ये बताना चाहते हैं कि मियाँ बीवी का ताल्लुक इतना खूबसूरत होना चाहिए जिस तरह लिबास को हम खूबसूरत रखने की कोशिश करते हैं, इसी तरह ये अज़दवाजी जो ताल्लुकात हैं ये भी इतने खूबसूरत होने चाहिए कि इन पर कोई उंगली न उठा सके। ये अल्लाह तबारक व तआला की चाहत है। तो निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इसको बयान किया। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के फवाइद भी बयान फरमाए। आपने फरमाया निकाह निस्फ ईमान है। जिस बंदे ने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान हो गया। अब बाकी आधी के बारे में वो अल्लाह से डरे। आधे ईमान का क्या मतलब है? आधे ईमान का ये मतलब है कि निकाह की वजह से वो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, इस वजह से उसको आधा ईमान कहा गया। तो बाकी आधे ईमान के बारे में फरमाया वो अल्लाह तबारक व तआला से डरे, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो ये बहुत बड़े फदाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया कि जी मैं तो निकाह के बगैर जिंदगी गुजारने को पसंद करता हूँ, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और आज के अंदर, आज के फितनों के दौर में ये नारा लग रहा है, ये नारा लग रहा है। अभी मार्च गुजरा है, 8 मार्च को किसी यूरोपीय मुल्क में नहीं, आपके मुल्क पाकिस्तान में इस्लामाबाद की सरजमीन पर औरत मार्च का धोखा देकर औरतों को बाहर लाया गया और उन्होंने नऊज़ु बिल्लाह मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के नारे लगाए। और उसमें एक बेहुदा बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान में निकाह का कोई पता नहीं होता था, ये गलत लोग निकाह को लेकर आए हैं, हम निकाह के बगैर जिंदगी नऊज़ु बिल्लाह गुजारना चाहते हैं। तो ये गलत नारे और बदबूदार नारे क्यों रवाज पकड़ रहे हैं? इसलिए कि हमने जो है उनकी जिंदगी को इख्तियार करना पसंद कर लिया और दीन और शरीयत की सुन्नत को जो है वो पीछे कर दिया। हालांकि इसको सबसे आगे रखना चाहिए था, इसको सबसे आगे रखना चाहिए था। इसलिए निकाह और शादी के मौका पर आप देखते हैं बाकी सारी तरतीबों के लिए हम बड़े एहतमाम करते हैं, लेकिन जो खास निकाह की तकरीब होती है उसको बिल्कुल साइड पर रखा जाता है कि हो गया तो ठीक है। लेकिन असल निकाह है, हम निकाह को सबसे पीछे रखते हैं और बाकी जो बैंड बाजी और ढोल हैं और इस तरह की चीजों को सबसे आगे रखा जाता है। मैंने एक वाकया पढ़ा, लाहौर के अंदर एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी करना थी,
1 साल पहले से उसने एहतमाम करना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को रुखसत करना है, उसके लिए बड़ा एहतमाम करूंगा। उसने 1 साल पहले से शादी के इंतजामात करना शुरू कर दिए। बर्तन वालों को कहा खास किस्म के बर्तन बनाओ, जो बारात आएगी हम उसको खाना खिलाएंगे, उसके ऊपर जो है वो शादी की यादगार का जो है मोहर लगी हुई होगी, ताकि वो बर्तन जो भी आएगा बाराती, हम वो बर्तन उसके हवाले कर देंगे कि अपने घर ले जाओ, ये हमारी तरफ से यादगार है। और फिर जितने बाराती आएंगे हर बाराती के गले में 1000 का हार डाला जाएगा और एक खास किस्म का जो है चम्मच उसने पत्थर से बनवाया कि ये भी हम शादी की यादगार के तौर पर हर बाराती को देंगे। गर्दे के खर्च में उसने इंतहा कर दी, पूरा साल कार्ड छपवाए, क्या से क्या उसने एहतमाम किया। बारात आ गई, उसने खाना भी खा लिया और लड़की को लेकर चले गए। आधे रास्ते में किसी ने लड़की के वाले से पूछ लिया कि लड़के वालों ने मेहर कितना रखा था। तो वो बाप कहते हैं ओहो हमने तो उसका निकाह ही नहीं किया, निकाह के बगैर ही अपनी बेटी को उन्होंने रवाना कर दिया। जो असल चीज थी वो उनको याद ही नहीं रही, और जो नकल चीजें थी, गलत चीजें थी, बेहुदा किस्म की रस्में थी, उनको पहले रखा गया और निकाह किसी को याद ही नहीं रहा और अपनी बेटी को उसने निकाह के बगैर ही घर से रवाना कर दिया। आधे रास्ते में जब पहुंचे तो लड़की के बाप ने फौरन बारात को रोका कि रुक जाओ, तुमने तो निकाह ही नहीं किया और निकाह के बगैर मेरी बेटी लेकर जा रहे हो। उधर ही मौलवी साहब साथ लेकर गए और आधे रास्ते में उसका निकाह हुआ, फिर उसको घर लेकर गए। ये हमारा तर्ज अमल है। जो असल चीज थी हमने उसको पीछे कर दिया, और जो हमारे मुआशरे के साथ, इस्लाम के साथ और इस निकाह के साथ जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, हमने उसको मेन मरकजी किरदार बना दिया। तो ये बहुत गलत तर्ज अमल है और ये तर्ज अमल हमें जो है निकाह की बरकतों से महरूम कर रहा है, निकाह के फवाइद से महरूम कर रहा है। इसलिए निकाह के मौका पर बयानात को और अल्लाह के नबी की नात को और कुरान को ये रवाज देना चाहिए। फिर हमें अजीब नहीं लगेगा जब 1-2 आदमी करें, फिर हमें अजीब लगता है, लेकिन हर एक अगर ये रवैया बना ले, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया हर वो महफिल, हर वो मजलिस, हर वो मुसलमानों का इकट्ठ जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ना हो, कल क़यामत के दिन ये रुसवाई का सबब बनेगा, ये महफिल शर्मिंदगी का सबब बनेगी। और जिस मुसलमानों के इज्तिमा इकट्ठ में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा, ये जिक्र आखिरत की बुलंदियां दिलाएगा, ये जिक्र आखिरत की कामयाबियां दिलाएगा। इसलिए अपने जितने इज्तिमात हैं, हमारे जितने इकट्ठ हैं, उनमें बजाय इसके कि हम गलत रस्मों को और गलत चीजों को शामिल करें, अल्लाह और उसके रसूल की बात को आम करें, इनके चर्चों को आम करें। जो इसको शुरू करेगा, जितने उसके पीछे चलेंगे, उस पहले को सवाब मिलता रहेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी शादियों के अंदर इन चीजों को रवाज मिले, तो हम अपने घर से इसको शुरू करें कि अपने घरों के अंदर कुरान और सुन्नत इस मौके पर बयान करने की तरतीब बनाएं। इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे और ये चलेगा, फिर किसी को अजीब नहीं लगेगा, फिर कोई नहीं कहेगा कि ये पूरे नाक वाला क्यों आ गया। फिर उनको पता चलेगा कि हम अजीब हैं, पूरे नाक वाला बंदा अजीब नहीं है। तो बहरहाल निकाह अंबिया की सुन्नत है। निकाह के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला 2 दिलों को, 2 खानदानों को जोड़ देते हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, लोगो अल्लाह से डरो। जो निकाह के मौका पर खुतबा पढ़ा जाता है उसमें खास तौर पर यह आयत होती है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और रिश्तों के हवाले से भी अल्लाह से डरो कि आपस के रिश्ते, जो खूनी रिश्ते अल्लाह ने तुम्हारे बनाए, या इस निकाह के जरिए से जो 2 खानदान आपस में जुड़ रहे हैं, इन रिश्तों का एहतराम करो, एक दूसरे के साथ रिश्ते और खून जोड़ कर रखो। अल्लाह ताला को ये सबसे ज्यादा महबूब है। इसलिए हदीस में आता है रिश्तों का जोड़ना ये ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने अपने अर्श के साथ जोड़ के रखा हुआ है, और अल्लाह इसको मुखातब करके कहते हैं ऐ रिश्तों को जोड़ना, ऐ सिला रहमी, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको पाश पाश कर दूंगा। तो इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कोई चाहता है मेरी उम्र के अंदर इजाफा हो जाए और मेरे रिस्क में इजाफा हो जाए, 2 बातें नॉमिनेट करके मेरे नबी ने कही, 2 बातें नॉमिनेट करके कही। हम में से कौन है जो उम्र का इजाफा नहीं चाहता, जो उम्र के अंदर बरकत नहीं चाहता? कौन है जो रिस्क में बरकत नहीं चाहता? कितने ऐसे लोग हैं जो रोजाना वर्जिशें कर रहे होते हैं? क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ने बताया है अगर आप इसी तरह रहेंगे और वर्जिश नहीं करेंगे तो आप जल्द फौत हो जाएंगे। तो अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए वर्जिशें की जाती हैं, डाइटिंग की जाती है।
डाइटिंग के बगैर, वर्जिश के बगैर सबसे बड़ा अमल बताऊं जिसके जरिए से उम्र में बरकत होगी। जो उम्र होगी अल्लाह की तरफ से तय, वो सेहत के साथ गुजरेगी। मेरे नबी ने फरमाया रिश्तों को जोड़कर चलो। एक दूसरे के जो रिश्ते अल्लाह ने तुम्हारे बनाए खूनी रिश्ते, उनका एहतराम और उनका पास और लिहाज करो। और दूसरी चीज कौन सी? फरमाया अल्लाह तुम्हारे रिस्क में भी इजाफा करेगा। किसकी बरकत से? इसकी बरकत से कि तुम रिश्तों को जोड़ने वाले हो। तो इसलिए रिश्तों को जोड़ना चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए। शादी से पहले जांचना चाहिए और शादी के बाद निभाना चाहिए। हमारे यहाँ उल्ट होता है, निकाह से पहले तो हम जो है वो जांचते नहीं है, निकाह के बाद जांचना शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी भी कमजोरी नजर आए तो फौरन उस पर नुक्ताचीनी शुरू हो जाती है कि सास ये कर रही है, बहू ये कर रही है। उससे पहले ये बात नहीं होती। हालांकि शरीयत का दस्तूर ये है, निकाह से पहले जांचो और निकाह हो जाए तो उसके बाद निभाओ। फिर उसको कोशिश करो कि जब अल्लाह के नाम पर हमने इजाब और कबूल कर लिया, अब इसको हम आखिर तक लेकर जाएंगे। कोई ऐसा काम न करेंगे जिसकी वजह से ये अल्लाह के नाम पर रिश्ता हासिल किया गया ये टूट जाए। इसलिए एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, बस आखिरी वाक़या अर्ज करके बात को खत्म कर रहा हूं। इमाम सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आता है बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो हदीसें पढ़ाने वाले। उनसे किसी ने पूछ लिया, हजरत आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अमल जिसके बारे में आपको उम्मीद हो कि वो आपकी बख्शिश करवाएगा? हर बंदे के पास ऐसे कुछ अमाल होते हैं जिनके बारे में उसको उम्मीद होती है कि मैंने खालिस अल्लाह के लिए किया था और कोई अमल नहीं तो ये अमल तो मुझे निजात जरूर दिलाएगा। तो उनसे पूछा गया, हजरत आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अमल जिसके बारे में आपको उम्मीद हो कि आपकी बख्शिश करवा देगा? हजरत फरमाते हैं कोई और अमल नहीं है, एक अमल है। सबके कान मुतवज्जे हो गए, कितने बड़े मुहद्दिस जब वो अमल कह रहे हैं तो हम भी उस अमल को अपनाएंगे, हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। सबके कान की खिड़कियां खुल गईं और सब मुतवज्जे हो गए। हजरत फरमाने लगे मेरा एक ही अमल है। कहा कौन सा अमल है? कहा जब मैं शादी के काबिल हो गया और मेरे जोड़ का रिश्ता मिल गया मेरी माँ को तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब मैंने अपनी बीवी को देखा, पहले नहीं देखा, बाद में देखा, जब मैंने उसको देखा राई तोहा औजा, तो उसकी जो शक्ल थी वो टेढ़े मुंह वाली थी और जो है बदशक्ल गोया की थी। मैं जब देखा उसको तो पहले तो मुझे घिन आई, नफरत आई, लेकिन फौरन मैंने उसी लम्हे कहा कि तुमने इसको अल्लाह के नाम पर हासिल किया है, अल्लाह के नाम पर हासिल किया है और इसकी चेहरे को और शक्ल को अल्लाह ने बनाया। तुम कौन होते हो इस पर एतराज करने वाले? मैंने नियत कर ली कि पूरी जिंदगी इसको बदशक्ली का ताना नहीं दूंगा। कहते अल्लाह के फजल से मैं कसम खाकर कहता हूं, वो दिन और आज का दिन 15 साल गुजरे, मेरी बीवी फौत हो गई, 15 साल मैंने उसके साथ गुजारे। कहते 15 सालों में कोई एक मौका भी नहीं आया कि मैंने उसको बदशक्ली का ताना दिया हो कि तुम्हारी शक्ल ऐसी है। मैंने अपनी नियत कर ली कि अल्लाह के नाम पर हासिल किया, इसलिए इसको निभाऊंगा। तो निकाह के बाद उसको निभाना चाहिए। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो शादी के बाद बच्ची को गुर्बत के ताने देते हैं, जहेज कम लाने के ताने देते हैं और गरीब होने के ताने देते हैं, माँ बाप के गरीब होने के, जायदाद के कम होने के ताने देते हैं। अरे तुम क्यों ताने देते हो? रिस्क का देने वाला अल्लाह है। तुम्हें अगर ज्यादा दे दिया तो वो भी अल्लाह ने दिया, उसको मुकद्दर का कम दिया तो वो भी अल्लाह ने दिया है। तुम क्यों उस पर एतराज करते हो? कई लोग नऊजुबिल्लाह अपनी बीवियों पर बच्चे ना होने का ताना लगाते हैं और ऐब लगाते हैं और कहते हैं इसकी औलाद नहीं है, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक। अरे औलाद का इख्तियार भी अल्लाह के पास है। तुम कौन होते हो इस पर उसको ताना देने वाले और बातें करने वाले? अल्लाह कुरान में कहते हैं वो अल्लाह चाहे जिसको बेटी अता करे, वो अल्लाह चाहे जिसको बेटे अता करे, वो अल्लाह चाहे जिसको चाहे जुड़वा अता करे, वो अल्लाह चाहे किसी को बे औलाद बना दे। ये अल्लाह की अपनी शान है। हमें ये किसी किस्म के लिए जायज नहीं है कि हम किसी पर इस तरह का ताना मारें, उसकी गुर्बत का, उसकी बदशक्ली का, उसके जहेज कम लाने का और उसकी औलाद न होने का। ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इंतहाई बदबूदार बात है कि अपनी बीवी को ये ताने मारे जाए या उसको बात बात पर तलाक की धमकियां दी जाए। ये लफ्ज जब मुंह से निकाला जाता है, हदीस में आता है अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। ये लफ्ज जब मुंह से निकाला जाता है बीवी के लिए, अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। लेकिन आज बात बात पर हमारे लिए गुड़िया का जो है वो खेल बन गया कि हम बात बात पर ये लफ्ज कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें इस निकाह के ताल्लुक को ऐसा बनाना है जिस तरह कुरान और सुन्नत में है,
जिस तरह मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला है। फिर आपने कहा व अना खैरुकुम ले अहली, मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। और सिर्फ बातों से आपने नहीं कहा बल्कि अमल से दिखलाया। आज हमारे लिए अमल अजीब लगेगा, अमल अजीब लगेगा क्योंकि हमने ये कभी सुना नहीं। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनको आप प्यार से हुमैरा कहा करते थे, हुमैरा जिनका लक़ब था, आपने कहा हुमैरा, वो पानी पी रही थी, हुमैरा मेरे लिए भी पानी बचाना। जिस बर्तन से अम्मा आयशा सिद्दीका पानी पी रही थी, अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं मैंने उससे पानी पिया, वो बर्तन अल्लाह के नबी के करीब किया, अल्लाह के नबी उसको मुंह के करीब लेकर गए, फिर रुक गए, रुक कर कहने लगे आयशा तुमने इस बर्तन से पानी पिया तो किस जगह से पिया, कहां मुंह लगाकर पानी पिया? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैंने निशानदेही की, यहाँ इस जगह पर। हदीस के अंदर आता है मेरे नबी ने बर्तन को फेरा और जहां से अम्मा आयशा सिद्दीका ने पिया था वहां से मेरे नबी ने भी उसको नोश फरमाया। ये मोहब्बत का ताल्लुक था। आपने अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार किया और सबके सामने किया, इसमें कोई ये नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। आपने फरमाया कि मैं अपनी बीवी आयशा से ऐसी मोहब्बत करता हूं, मुझे तमाम बीवियों में आयशा इस तरह महबूब है जिस तरह के खानों में मुझे शरीद खाना सबसे ज्यादा महबूब है। तो ये बहुत सारी अहादीस हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़दवाजी जिंदगी को बहार बनाने के लिए, अज़दवाजी जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए सिर्फ बात नहीं की, अपने अमल से दिखलाया है। अगर आज ये कुरान और सुन्नत के नमूने हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाएं तो हमारी जिंदगी भी पुरसुकून बन जाए, इस जिंदगी के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला खैर और बरकत डाल दें जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो शादी जो है वो सिर्फ जो है ईजाब व कबूल, शरी मेहर, शरी गवाह और उसके बाद वलीमा, इन चीजों का नाम शादी है। बाकी जितने बखेड़े हमने इसमें शामिल किए हुए हैं उनका निकाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये गैरों से हमारे पास आए हैं, गैरों से हमारे पास आए हैं। इसलिए हम जो शादियां और निकाह है वो इस्लाम के मुताबिक उनको रवाज दे, उन्हीं में अल्लाह तबारक व तआला खैर बरकत डालेगा, दुनिया की भी इज्जतें और आसानियां अता करेगा और आखिरत की इज्जतें भी और आसानियां अता करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस निकाह को दो ज़ौजैन के दरमियान, खानदानों के दरमियान बाहमी इत्तेफाक, इत्तेहाद, खैर और बरकत का जरिया बनाए और हम सबको इन बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आजा जगह बहुत है। आप इधर आइए। शुक्रिया।